Good afternoon, everyone. On behalf of ISF College of Pharmacy, I, Dr. Saurabh Kose, welcomes you all. As you know that ISF College of Pharmacy, Moga, Punjab is conducting an online dialogue series under the aegis of IQAC Cell, ISF College of Pharmacy, Moga, Punjab. So in that series, we are continuously bringing up pharmaceutical scientists to this platform. In this category, today we have Dr. Pranjay Kumar Shukla sir, who is right now working as a professor and head of department of Krishnapit Institute of Pharmacy, Prayagraj. Welcome you, sir. I would like to introduce you to the audience. Dr. Pranjay Shukla is young, inspiring academician of pharmaceutical chemistry. He did his master's in chemistry from Department of Pharmaceutical Sciences, Faculty of Health Sciences, Sam Hamilton University of Agriculture, Technology and Sciences, Allahabad, and from the same university, sir did PhD. And sir has written 32 articles, 3 books, 8 book chapters in various national and international publishers, 1 patents, 12 invited talks at various institutions, 41 papers in different national and international seminar conferences, actively participates in more than 1 dozen of FDPs. He is actively working for many journals as reviewers, and he is one of the best co-creator of YouTube channel for pharmacy education named Dr. Pranjay Shukla and Dr. MP Singh classes with more than 2 lakh subscribers. He is also co-creator of mobile application for pharmacy education named Dr. PKS, Dr. MPS classes with more than 10,000 downloads on Google Play Store. He got many awards like Young Scientist Best Paper Award by National Professionals and Academicians Academy in 2012, Young Pharma Teacher Award in International Conference at BHU South Campus in 2018, Best Innovative Teacher Award at Virtual Conference Pharma Vision 2K25 in 2020, and Award of Appreciation by Nirali Prakashan in 2021, Kautilya Acharya Samman in 2022, Silver Play Award by YouTube in 2022, and Silver Education Award by Class Plus in 2023. With this brief bio sketch, sir, I would like to once again welcome to you ISF College of Pharmacy. Now, sir, you can start. You can share your screen. Thank you so much, sir, for accepting our invitation. Please, sir. Thank you for kind introduction, sir. And I thank IQAC, the ISF College of Pharmacy, Moga, and to my lovable friend and respected Professor Dr. Saurabh Kose, sir, to inviting me for this talk. So I start my topic, and today's topic for this lecture series is safety and waste management in the pharmaceutical laboratories. And why this topic? So छोटा सा introduction. My guide, Professor Dr. Amita Verma ma'am, the professor and head of department at CIATS Prayagraj, received ACH grant for this topic to convey his message of ACS message to the students at school level and the institutions level, to the researchers and all the people who are working in the chemical laboratories and the pharmaceutical laboratories, to aware them about the lab safety procedures and the chemical safety procedures, glassware procedures, and the management of waste which is producing during the laboratory procedures. So I asked ma'am, why ma'am this topic is so important, because this is a very tiny topic, and इसको हम लोग जब भी पढ़ रहे होते हैं खास करके ग्रेजुएशन लेवल पे, तो वहाँ पे या हाई स्कूल इंटर लेवल पे इसके बारे में कोई बात डिस्कस किया नहीं जाता. I usually used one lecture in every first year class when we go to the lab about the lab safety. क्यों हमें लैब कोट पहनना चाहिए, हम किस तरीके से प्रोसीजर करेंगे, कौन सा ग्लासवेयर है, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या उसका यूज होगा. तो ये तो कॉमन एक चलता है, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में बात जो है कहीं नहीं की जाती. तो एक कार्यक्रम आता था बहुत पहले, शक्तिमान, अगर हम लोग बचपन में देखा करते थे सर, उसमें एक पोर्शन आता था लास्ट में, छोटी छोटी मगर मोटी बातें. तो कुछ उसी तरीके की यहाँ पर छोटी छोटी मगर मोटी बातें करूंगा, जो कि वो सभी हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे हो, या रिसर्च स्कॉलर्स हो जो लैब पे बात कर रहे हो, काम कर रहे हो, उनके काम आएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो लेबोरेटरीज होती हैं वहाँ पर खास करके जो एक्सीडेंट्स होते हैं, वाई दे आर एक्सीडेंट्स, बिकॉज जो सबसे जरूरी चीज़ है यहाँ पर वो है कि जो नेचर है, ह्यूमन नेचर, खास करके स्टूडेंट्स का, तो वो करते क्या है कि वो लैब को भी मौज मस्ती का एरिया बनाते हैं. तो हम लोग हमेशा स्टूडेंट्स से ये बात बोलते हैं कि जो आपका क्लासरूम है वहाँ पे आप मौज मस्ती कर सकते हैं. जो टीचर्स कभी कभार पढ़ाते हुए कुछ जोक्स वगैरह क्रैक करते हैं, हाँ कभी कभार किसी के पेन ले लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब चलता है. बट इन द लैब वी हैव टू सीरियस, बिकॉज वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम सीरियस एक्सपेरिमेंट्स
We have to very much careful about the procedures and the chemicals, glasswares, equipment, and whole the surroundings in the laboratories. So the carelessness, the inadequate safety training, inadequate instructions, overcrowding is very much seen in the new institutions, because there are many much institutions which are having lots of admissions, बट जो क्राउडिंग को कंट्रोल करने के लिए, यानी जो लैब की परफेक्ट साइज है या बैच साइज के बारे में जो हम बात करते हैं, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भी हमें एक गाइडलाइन देती है, उस गाइडलाइन को लोग भूल जाते हैं. इंस्ट्रक्शंस देने के लिए जो इंस्ट्रक्टर्स की जरूरत है, टीचर्स की जरूरत है, या लैब टेक्नीशियंस की आवश्यकता है, उसकी मात्रा भी कम होती है इंडिया में खास करके, तो जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग जो है वो एक काफी बड़ा फैक्टर यहाँ पर होता है. इनएडिक्वेट फैसिलिटीज हैं, मिसबिहेवियर की चीजें निकल के आती हैं, पुअर लेबोरेटरी मैनेजमेंट है, इनएडिक्वेट इक्विपमेंट है, इग्नोरेंस इत्यादि है. ये सभी चीजें हैं जो कि लेबोरेटरी एक्सीडेंट्स होने के मेजर कारण में हमें देखने को मिलता है. तो आइए बात करते हैं कि हम आज का टॉपिक पे बात क्या करेंगे. तो देखिए, वी आर ऑल फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल साइंसेज, एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज जो कोर्सेज हैं ये डिफरेंट और कोर्सेज से बिल्कुल जुदा इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ पर हम एम्फेसिस करते हैं ऑन द थ्योरी क्लासेस एंड द प्रैक्टिकल क्लासेस एज वेल. तो जितना इंपॉर्टेंस थ्योरी क्लासेस का है उतना ही प्रैक्टिकल क्लासेस का है, बिकॉज प्रैक्टिकली परफॉर्म किए उन थ्योरी चीज़ों को हम बच्चों को अच्छी तरीके से समझा नहीं सकते, या हमें क्वालिटी कंट्रोल करना है मेडिसिन का, या नई चीज़ें सीखनी है, नई दवाओं की खोज करनी है, ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर्ड सम प्रैक्टिकल नॉलेज. तो सो प्रैक्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फार्मेसी कैरिकुलम. और फार्मेसी कैरिकुलम में कई बार हम जब फार्मास्यूटिकल साइंसेज की बात करते हैं तो लोग इसको ब्रांचेस में तोड़ना शुरू कर देते हैं. वी विल टॉकिंग अबाउट द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, ईटीसी. देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांचेस, बट इन सभी के लिए अलग अलग लैब्स भी होती हैं. एज पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, आपके इंस्टीट्यूट में, हमारे इंस्टीट्यूट में, हर जगह ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है. इन सभी लैब्स को जो कॉमन चीजें होती हैं उनके बारे में अगर बात करें तो इन सभी लैब्स में हमें वाटर के टैप देखने को मिलते हैं, सिंक देखने को मिलता है, स्लैब देखने को मिलता है, आपका एग्जॉस्ट होता है, लाइटिंग की व्यवस्था होती है, आपका प्रिपरेशन रूम होता है, फ्यूमिंग चैम्बर होते हैं. ये सारी चीजें कॉमन है, लेकिन इन सभी चीजों के साथ एक और चीज है जो कि कॉमन है, एंड दैट इज नोन एज केमिकल्स इन द ग्लासवेयर्स, विच इज ऑलवेज यूज ऑल ऑफ दीज लैब्स, जिनको हम लोग नाम या सब्जेक्ट से तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बट इन सभी को एक करने का काम जो है वो केमिकल्स करता है. बिकॉज कोई भी केमिकल, कोई भी प्रोसीजर हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ज्यादातर जगहों पे हमें केमिकल्स जो है वो यूज करना पड़ता है. अब ये जो केमिकल्स हैं इनका एक सबसे बड़ी खास बात है कि ये रिएक्शंस करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं. अब इसीलिए कई बार हम लोग कहते हैं कि हम जो हमारी बॉडी है वो भी केमिकल से बनी हुई है, लेकिन हम केमिकल्स नहीं है. तो हमें रिएक्ट करने से पहले सोचने समझने की क्षमता ईश्वर ने दी है, बट केमिकल्स के साथ ये नहीं है. केमिकल्स जो है कहीं पर भी लाइट के साथ, एयर के साथ, वाटर के साथ, किसी के साथ भी जो है तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं. तो इन सभी के साथ कोई ना कोई पोटेंशियल हजार्ड कुछ जुड़ा होता है, और इसलिए इन केमिकल्स को हैंडल करते वक्त हमें प्रिकॉशंस की आवश्यकता पड़ती है, ताकि किसी तरीके के केमिकल एक्सपोजर या मिसहैप से हम प्रिवेंट कर सके, प्रिवेंशन जो है वो पा सकें. तो आइए बात करते हैं द बेसिक रूट्स ऑफ द एंट्री. एंड द बेसिक रूट ऑफ एंट्री टू द ऑफ द केमिकल इनटू द ह्यूमन बॉडी आर, देयर आर थ्री बेसिक रूट्स. देयर आर मेनी रूट्स, बट थ्री बेसिक रूट्स. द फर्स्ट वन इज inhalation into the lungs, because in many chemical reactions there are some fuming nature gases expel out during the procedure, or some chemicals like acetyl chloride, benzyl chloride. जब आप इसके बॉटल को ओपन करते हो तो उसमें से फ्यूम्स निकलना शुरू होते हैं. ब्रोमीन वाटर का प्रोसीजर आप कर रहे हैं, ब्रोमीन है, उससे बहुत सारी फ्यूम्स जो है निकलती हैं, एंड दे आर इरिटेटिंग इन नेचर एंड दे कैन इनहेल इनटू द लंग्स. कई बार लैब्स में देखने को मिलता है, क्योंकि मूवीज में हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म जो है वो यूज करते हैं लोग, और गलत कामों के लिए, किसी को बेहोश इत्यादि करने के लिए, बट दैट इज थिंग which is we use as a solvent in the chemical laboratories. So उसको अगर कोई बच्चे ने खेल में इनहेल कर लिया तो वो उसके लिए काफी दिक्कत का काम कर सकता है. नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन इनटू द स्किन मेम्ब्रेन, कट्स इन द स्किन. बिकॉज हम जब केमिकल्स को यूज कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि आप लोग जो है ग्लव्स पहने, आप लैब कोट पहने, बिकॉज कभी बार केमिकल जो है वो क्या नाम है, थोड़ा बहुत गिर सकता है आपके ऊपर, और आपकी स्किन के थ्रू जो है वो आपके अंदर जा सकता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इन्जेक्शन वाया द माउथ इनटू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम. अब यहाँ पे एक पिक्चर आप देख रहे हैं, दैट द गर्ल विच इज सकिंग द केमिकल बाय द माउथ.
एंड हम लोग जब पढ़ते थे आज से 15-16 साल पहले, जब हम लैब में जाते थे, तो हमारे इंटरमीडिएट में, और भी पहले की बात करें 20 साल पहले की बात करें, तो भी ये बड़ी एक कॉमन सी प्रैक्टिस थी कि जो पिपेट्स होती थी और जो केमिकल्स हैं, चाहे वो एसिड हो, बेसिस हो, वी हैव टू सक बाय द माउथ, बिकॉज वो एक बल्ब देते थे रबर का, एंड दैट रबर बल्ब ड्यू टू द टेम्परेचर, ड्यू टू द हीट, जनरली वो खराब हो जाता था और वो सकिंग करने का काम जो है सही तरीके से नहीं कर पाता था। तो टीचर्स भी इसको अलाउ करते थे और लैब टेक्नीशियंस भी अलाउ करते थे, और आपने क्या किया, माउथ पे लगाया और सक्शन किया और जो केमिकल जो है वो आपका आ गया और आपने पिपेट आउट कर दिया उसको। बट it is the most dangerous thing, because some of the dangerous chemical may go to the your mouth, and from there it is go to the GI tract. So I request you all, प्लीज डू नॉट डू दिस, बिकॉज आजकल की लैब में तो आजकल माइक्रोपिपेट इत्यादि आते हैं, वहाँ पे सक्शन पंप जो है पहले से लगा रहता है, तो वो अच्छी चीज है, वो थोड़ी सी महंगी आती है, लेकिन हम उसे अगर एक बार परचेज कर ले तो जो ये बल्ब का प्रॉब्लम है या माउथ से सकिंग है, ये काफी सर लैब्स में खत्म हो जाती है। तो अच्छे इंस्टीट्यूशंस में तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस में जहां नहीं है, वहां पे हमें इन सब चीजों को अवॉइड करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम एक केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। केमिकल्स का क्लासिफिकेशन ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हजार्ड्स, की क्या उनके पीछे हजार्ड छुपे हुए हैं। तो सबसे पहला, और जो ये आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, इस पिक्चर में जो यहाँ पर एक लोगो टाइप का बना हुआ है, ये लोगोज आपको बॉटल्स पे या केमिकल्स के डिब्बे पे दिख जाता है, और ये बता रहा होता है कि वो किस नेचर के चीजें हैं। तो सबसे पहले आता है कोरोसिव। कोरोसिव नेचर के जो चीजें होती हैं वो आपके टिश्यूज, आपके सेल्स को बर्न कर सकती हैं, आपके स्किन को खराब कर सकती हैं, और आपके साइट ऑफ कांटेक्ट पे जहां पर वो आते हैं वहां पे केमिकल रिएक्शंस कॉज करते हैं और स्किन इत्यादि को डैमेज करने का काम करते हैं। इनके टिपिकल एग्जांपल्स की अगर बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्रोमीन एंड फिनॉल। अब इन सब में भी जो सबसे खतरनाक आइटम है वो है ब्रोमीन। हम सभी और सभी को जानते हैं, सभी का आसार हम लोगों ने यूज किया है, वो सभी कोरोसिव है। लेकिन जो ब्रोमीन जैसी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स में आप ब्रोमीन का नाम सुनते हैं, बट 1 ड्रॉप ऑफ ब्रोमीन अगर आपकी स्किन पे गिर जाए तो बहुत ही ज्यादा डैमेज जो है वो कर सकती है। तो इसलिए इसके साथ काफी ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इन सभी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ब्रोमीन इत्यादि से फ्यूम्स इत्यादि भी निकलती हैं, जो कि कोरोसिव नेचर की होती हैं, और आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाकर के इनहेलेशन के थ्रू या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जाकर के इंजेक्शन के थ्रू वहां पर भी डैमेज जो है वो कॉज कर सकती है। तो इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है अगला, ऑक्सीडाइजर्स। ऑक्सीडाइजर्स जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं एग्जैक्टली, और वो सर्टेन कंडीशंस में ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं, इसीलिए उन्हें हम लोग ऑक्सीडाइजर्स के नाम से जानते हैं। और ये ऑक्सीडेशन कॉज करते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, नाइट्रिक एसिड है, परक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरेट्स, क्रोमेट्स, डिफरेंट नाइट्रेट्स, पेरोक्साइड्स, ईटीसी। अब इनकी सबसे खास बात ये है कि ये किसी जगह पे ऑक्सीजन अगर यील्ड कर सकते हैं, और ऑक्सीजन हम सभी को मालूम है एक ऐसी गैस है जो खुद तो नहीं जलती लेकिन दूसरों को जलाने के बड़े काम में आती है, तो बहुत तेजी से फ्लेमेबल जो गैसेस जो है यहाँ पे बन सकती हैं, या फ्लेमेबिलिटी जो है वो इनकी इंक्रीज कर सकता है। तो इनको कभी भी आप ऐसी चीजों के साथ स्टोर ना करें जहां पर फ्लेमेबल चीजें हों, और ये ऑक्सीडाइजर्स उनके साथ मिल करके विगरस जो है रिएक्शंस करें, और जो है आग इत्यादि लगने का जो है डर वहां पे बना रहता है। नेक्स्ट है हमारे फ्लेमेबल्स, जो कि बहुत तेजी से कैच फायर करते हैं और हवा में जो है वो जलना शुरू कर जाते हैं। इनकी जो वेपर्स होती हैं फ्लेमेबल लिक्विड से निकल सकती हैं, वो भी हो सकते हैं, और ये कॉमन एक फायर हजार्ड होता है लेबोरेटरीज में। ज्यादातर लेबोरेटरीज में जहां पर आग लगने की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल ये होते हैं। और एग्जाम्पल्स आप देखिए, एसीटोन, इथेनॉल, गैसोलीन, टॉल्यूइन, डाईइथाइल ईथर। अब डाईइथाइल ईथर, टॉल्यूइन, इथेनॉल, एसीटोन के बिना मुझे नहीं लगता कि किसी भी केमिकल लेबोरेटरीज में कोई काम होता होगा। अब एक जो एक्सीडेंट आपको माइक्रोबायोलॉजी लैब का एग्जांपल देता हूँ। केमिकल लैब्स की में तो हो ही सकता है, क्योंकि हम कभी हमने बर्नर ऑन किया है, हम उसके बगल में अल्कोहल के साथ काम कर रहे हैं, कैच कर लिया फायर, ये तो कॉमन है। बट माइक्रोबायोलॉजी लैब में जब हम लोग वर्किंग स्टेशन पे काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमें बार बार जो है सैनिटाइजेशन की जरूरत पड़ती है, और वहां पे हैंड सैनिटाइजेशन करने के लिए इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है जनरली। अब अल्कोहल वहां रखा हुआ है, वहीं फायर भी जल रही होती है, और जो आपका फायर गैस है, आपका जो वायर गैस है, जिसको आप लोग लगातार क्या नाम है स्पॉटिंग वगैरह करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, उसको स्टरलाइज करने के लिए हम फायर का प्रयोग कर देते हैं। बड़ी कंट्राक्टिंग, एक तरफ फायर जला रखा है, एक तरफ इथेनॉल लेकर के हाथ पे आप यूज कर रहे हो। तो अब ये देखिए, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, बड़ी छोटी सी बात है कि जब आप माइक्रोबायोलॉजी लैब में इस तरीके का कोई प्रोसीजर कर रहे हो, तो जब आप अपने हाथ में एथेनॉल लगा करके सैनिटाइज कर रहे हैं, तो जब पूरी तरीके से वो सूख जाए, यानी कि अब इथेनॉल आपके हाथ में ना बचे, तब आप जो है आगे का प्रोसीजर करें और दूरी बना कर रखें फायर से भी। तो ये सारी चीजें हैं।
अब जो ये फ्लेमेबल्स होते हैं, इनकी जो डिग्री ऑफ हजार्ड्स है वो डिपेंड करता है इनके फ्लैश पॉइंट पे। बहुत कम फ्लैश पॉइंट होगा तो जल्दी आग पकड़ेंगे, फ्लेमेबिलिटी लिमिट के ऊपर, और जो इग्निशन टेम्परेचर इत्यादि है उसके ऊपर। नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियली एक्सप्लोजिव केमिकल्स भी होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में गैसेस या सडन इंक्रीज करते हैं प्रेशर का और आसपास की चीजों को नुकसान काफी ज्यादा पहुंचाते हैं। इनके एग्जांपल्स जो हैं वो है एसिटाइलाइड्स, एजाइड्स, आपके नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स, परकॉलरेट सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स ईटीसी। अब इनका अगर हीट के साथ, लाइट के साथ मैकेनिकल शॉक मिलता है, कई बार टकरा गया या गिर गया, चोट लगी उसको, मतलब कि प्रेशर पड़ा, तो वो कैटलाइसिस करते हैं और इनिशिएट करते हैं एक्सप्लोजिव रिएक्शंस को, जिनकी वजह से आसपास का इलाका जो है वो, उनके आसपास जो भी कुछ है उसको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स भी आगे आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट हमारे टॉक्सिक केमिकल्स। टॉक्सिक केमिकल्स से इनको हम कार्सिनोजेनिक भी बोल सकते हैं, ऐसे केमिकल्स जिनका आपके शरीर के अंदर बिल्कुल जाना प्रोहिबिटेड है ड्यूरिंग द लैब प्रोसीजर्स। अब ये हमारे शरीर के लिए लीथल इफेक्ट शो करते हैं, इंजीरियस होते हैं, हमारे बॉडी सेल्स के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को हमारे चेंज कर सकते हैं, और इनके एक्सटेंट ऑफ एक्सपोजर के ऊपर डिटरमाइन करता है कि कितना आपको ये नुकसान जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो इनसे एक्सपोजर हमको कम से कम जो है वो रखना चाहिए। और इनके जो टॉक्सिक इफेक्ट, जैसे मैंने अभी क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल लिया था, तो क्लोरोफॉर्म को हमें अपने इनहेलेशन से दूर रखने की जरूरत पड़ती है। तो जितना ज्यादा इनका आपका एक्सपोजर होगा उतना ज्यादा ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, लैब से थोड़ा बाहर चलें अगर, वर्किंग स्टेशन में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है गाजीपुर, जहाँ पे इंडिया की दूसरी केवल 2 ही टोबैको फैक्ट्रीज हैं, वहाँ टोबैको फैक्ट्रीज है। अगर उन टोबैको फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स लगातार काम कर रहे हैं, उनको अगर देखा जाए तो उनको लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है, क्योंकि जो टोबैको का डस्ट है वो लगातार उनके बॉडी के अंदर जाता है। इसको देख करके कंपनी के मैनेजमेंट ने और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो भी वर्कर्स होंगे वो 6 महीने की शिफ्ट में ही काम करेंगे, यानी 6 महीने काम करेंगे और 6 महीने घर पे रहेंगे, 6 महीने फैक्ट्री नहीं आएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी क्रॉनिक जो एक्सपोजर्स है वो काफी सारा नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए इस तरीके की चीजें की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स में, अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे न्यूरोटॉक्सिन्स हैं जो आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, और ये सभी कॉमन केमिकल्स का मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ जिनको हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं लैब में। जैसे मर्करी है, जाइलिन है, कार्बन डाइसल्फाइड, आपका नॉर्मल हेक्सेन, ट्राइक्लोरोइथाइलिन ईटीसी। नेक्स्ट हमारा हिमेटोटॉक्सिन्स है जो कि ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं, टॉक्सिक है ब्लड के लिए, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रेट्स हैं, एरोमेटिक अमीन्स कंपाउंड है ईटीसी। हमारे हिपेटोटॉक्सिन्स अगर बॉडी के अंदर चले गए तो लीवर को नुकसान पहुंचा देते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म है हमारा, डाइनाइट्रोबेंजीन है ईटीसी। नेक्स्ट हमारा नेफ्रोटॉक्सिन्स है जो किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कैडियम है, मर्करी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ईटीसी। नेक्स्ट डर्मेटोटॉक्सिन्स हैं जो स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, खास करके एसिड्स हो या एसिड्स के बने हुए डेरिवेटिव्स हो, वो सब आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया एक केमिकल क्लासिफिकेशन कि इनको हमको जानना चाहिए, और जब इनको जानेंगे तभी इनकी स्टोरेज इत्यादि के बारे में या इनके यूज के बारे में हम बात कर पाएंगे। अब सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो है स्टोरेज ऑफ द केमिकल्स। ये काम देखिए जनरली क्या होता है कि लैब में जो लैब इंचार्ज है उनका काम है, लेकिन जो भी स्टूडेंट, जो भी लैब टेक्नीशियन, जो भी व्यक्ति लैब के अंदर है, वो इस काम में जरूर मदद कर सकता है, क्योंकि वो स्पॉइलेज करता है। कई बार वो बल्क प्रोडक्ट लेकर के आया, मिक्सिंग कर दिया, किसी का ढक्कन किसी दूसरे केमिकल के ऊपर लगा दिया, तो वो एक्सीडेंट करने के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो जो बल्क स्टॉक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कॉलेजेस की लैब है, अब 5 लीटर का हमने सल्फ्यूरिक एसिड मंगाया है, तो 5 लीटर को हम सीधे जो है लैब्स में नहीं रख सकते, या बच्चों के हाथ में नहीं दिया जा सकता, या किसी भी व्यक्ति के हाथ में उतना बड़ा अमाउंट में नहीं। अब उसको चाहिए 2 ml 4 ml, तो हम उसे छोटे बॉटल्स में ट्रांसफर करते हैं और वो हम वर्किंग स्टेशन पे पहुंचाते हैं। और बल्क स्टॉक जो है वो अलग सेपरेट बिल्डिंग में, जहां हम ड्रग स्टोर कर रहे होते हैं या केमिकल स्टोरेज है हमारा, वहां पे हम रखते हैं। जो स्पॉइल है, जो फायर है, जिसमें बल्क कंटेनर्स हैं, उनमें अगर आग पकड़ लेती है या फ्लेमेबल नेचर के हैं, तो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं स्मॉलर बॉटल्स के अगेंस्ट। ये बड़ी ही कॉमन सी एक बात है। तो जो केमिकल्स हैं उनको हम लोगों को स्टोरेज सेल्स में, जहां उनके लिए जगह हमने बनाई है, उनको रखना चाहिए। और अभी मैं एक आपको कंपेटेबिलिटी टेबल भी दिखाऊंगा, केमिकल्स की कंपेटेबिलिटी की किसके साथ कंपैटिबल है। कई बार होता है क्लासरूम्स में भी कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होते, तो अगर हम उनको एक साथ रख रहे हैं तो डिस्टर्ब कर देते हैं पूरी क्लास, या लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। कंपैटिबल है तो साथ में रहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड का, बड़ा ही सिंपल सा एक कॉमन सा केमिकल है
जो कि एक फ्लेमेबल लिक्विड है, अगर आग के पास हो तो आग लग सकती है। तो ऑक्सीडाइजिंग जो एसिड्स हैं या ऑक्सीडाइजर जो हैं, उनके साथ हमें कभी भी एसिटिक एसिड को आपको स्टोरेज नहीं करना चाहिए। नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इनको एक साथ रखा जा सकता है, लेकिन अलग अलग डिप टेयर्स के अंदर, ट्रेस के अंदर डाल करके रखना है, क्योंकि ये दोनों आपस में अगर मिल जाएंगे तो भी जो है वो विग्रस रिएक्शन कॉज कर सकते हैं। अब इसमें मैंने एक टेबल की बात की थी, अब इसको एक शॉट में आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, जहां पे आप देख रहे हैं ये डिफरेंट टाइप के नेचर के हैं, करोसिव है, इरिटेंट है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, टॉक्सिक हैं, आपके फ्लेमेबल हैं, ऑक्सीडाइजर्स हैं और एक्सप्लोजिव्स हैं। अब इधर भी हैं, अब किसको किसके साथ रखना है, तो जो ये ग्रीन बॉक्सेस आप देख रहे हो, ये वो है जहां पर हम एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी के केमिकल्स के साथ स्टोर करके रख सकते हैं। जो हमारा येलो कैटेगरी वाला है, जैसे भी मैंने नाइट्रिक एसिड और आपका एसिड का एग्जांपल लिया था, वैसे केमिकल्स हैं जिनको हम रख तो सकते हैं, लेकिन इनके लिए स्पेशल प्रिकॉशंस भी चाहिए, और इनको जो है स्टोर करते समय हमें जो है एसडीएस सेफ्टी डेटा शीट्स, आप इसको देख सकते हो, पबकेम वेबसाइट है, हर केमिकल के बारे में आपको जानकारी मिलती है, वहां पे एसडीएस आपको देखने को मिलता है, दैट इज सेफ्टी डेटा शीट्स। तो किस तरीके का स्टोरेज करना है, स्टोरेज कंडीशन के बारे में बात करते हैं वहां पे, कि कितना टेम्परेचर रहेगा, अगर प्रेशर चाहिए या क्या वहां पे हीट चाहिए कि नहीं चाहिए, लाइट के अंदर रखना है कि नहीं रखना, इन चीजों का ध्यान रखेंगे, और एक साथ जो है अलग अलग ट्रे ड्रायर्स के अंदर, सॉरी ट्रे के अंदर डाल करके इसको रख सकते हैं। और जो ये रेड बॉक्सेस दिख रहे हैं जिसमें क्रॉस का निशान भी आपको दिख रहा है, इनको कभी भी एक साथ आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर इनको एक साथ रखेंगे तो ये एक्सीडेंट्स जरूर कॉज करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। इस चार्ट को हम लोग कंपैटिबल चार्ट बोलते हैं, और हर लैब में ये कंपैटिबल चार्ट जो है वो होना चाहिए। हर स्टोरेज जो एरिया है वहां पर ये कंपैटिबल चार्ट होना चाहिए, चाहे वो एकेडमिक लैब हो, चाहे वो रिसर्च लैब हो, चाहे वो हमारे फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री के अंदर की लैब्स हो, वहां पर आपको ये चार्ट जो है वो लगाना चाहिए। जो भी कंसर्न व्यक्ति हैं वो ये काम कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल में मैं आपको सेल्फ का एग्जांपल दे रहा हूँ एक लैब का, ये हमारे यहाँ की लैब है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सेपरेट केमिकल्स हैं उनको सेपरेटली जो है वो स्टोर किया जाता है ग्रुप करके, और स्टोरेज जो है अल्फाबेटिकली उनको नाम रख करके भी हम कर सकते हैं। कंपैटिबल ग्रुप के अंदर इनको जो है वो रखने के लिए सेल्फ जो है वो बनाई जा सकती है। अब कई जगह पे ये भी इस तरीके का देखा जाता है, ये भी हमारी एक कॉलेज में था, मैं वहां का ये पिक्चर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो केमिकल्स हैं उनको ऐसी जगह स्टोर किया गया है कि जो सनलाइट है वो सीधे केमिकल्स बॉटल्स के ऊपर पड़ रही है। जनरली जो स्टोरेज होती है केमिकल्स बॉटल की, वो अम्बर्ड कलर ग्लास में होती है, जिसमें लाइट का पेनिट्रेशन कम से कम होता है। फिर भी हम अवॉइड करें कि जो हीट है, जो सनलाइट है, वो डायरेक्ट केमिकल्स पर ना पड़े, क्योंकि वो डेटोनेट करती है केमिकल्स को, उनके नेचर को डेटोनेट कर सकती है, वहाँ ऑक्सीडेशन इत्यादि का कॉज कर सकती है, और डायरेक्ट सनलाइट या हीट जो है उनको खराब तो करती है, साथ ही साथ एक और चीज को खराब करती है, वो खराब करती है उनके स्टोरेज कंटेनर्स को, जैसे खास करके ये प्लास्टिक कंटेनर्स हैं तो ये खराब हो जाएंगे, और जो ये लेबल इत्यादि लगा हुआ है इनका भी डेटोनेशन हो रहा होता है, क्योंकि ये सनलाइट जो है वो इनको भी धीरे धीरे खराब कर रही होती है। अब अब आप कहेंगे कि लेवल खराब हो रहा है तो सर इससे क्या प्रॉब्लम है। एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है कि कोई दुनिया का कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, जिसने बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रखी हो, केमिस्ट हो, फार्मासिस्ट हो, अगर हम लोग टैबलेट्स को रैपर से बाहर निकाल करके बिछा दें और कहें कि बता दीजिए कि कौन सी टैबलेट है, पैरासिटामोल कौन है, इसमें से कौन सा एस्प्रिन है, कौन सा सिपेक्सिम है, शायद ही कोई बता पाए, एक दो शायद तुक्का मार भी दे लेकिन नहीं बता पाएगा। उसी तरीके से केमिकल्स भी हैं, अगर लेबल ही हट गया तो बहुत ज्यादा मिसहैप होने की संभावना है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि कौन सा केमिकल हम यूज कर रहे हैं, हमें NaOH यूज करना है, हम कुछ और ही यूज कर रहे हैं, बिकॉज लेबल जो है वहां पर गलत लिखा हुआ है या सही से पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो हम देख करके नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट जो केमिकल्स हैं, अब ये एक बड़ी अच्छी चीज है, जो केमिकल्स हैं उनको स्टोरेज कहाँ करना है। आप जो ऐसे केमिकल्स हैं जो हजार्डियस इन नेचर हैं, कोरोसिव हैं, इन्फ्लेमेबल हैं, अगर या बल्क ऑर्डर है, मतलब बल्क आ गया है, कोई बड़ा अमाउंट है, उसको आप स्टोर कहाँ करोगे, उसको आप रखोगे क्या, काम करते वक्त भी उसको कहाँ रखना है, भाई कई बार यूज करना है तो कहाँ रखेंगे। लेबोरेटरी इसके बीच में या किसी कमरे के बीच में आप ऐसी कोई चीज रख दो जो कि महंगी हो, जो कि क्या नाम है कोरोसिव हो, और आते जाते कई सारे लोगों के पैर से ठोकर लग सकती है, किसी के हाथ से ठोकर लग सकती है और तुरंत नीचे गिर जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केमिकल्स को, जो आपका रूम है, रूम को अगर आप ध्यान से देखिए तो जो रूम का कोना है, इट इज एक्स एक्सिस नीचे जा रही है, वाई एक्सिस एक तरफ जा रही है, जेड एक्सिस एक तरफ जा रही है, उस इलाके में आप देखते हैं तो थ्री टाइप से ये कवर एरिया है। अब इसी एरिया को देखिए तो एक तरफ से दीवार है
दूसरी तरफ भी दीवार है, अगर दो तरफ से वो कवर्ड है तो दो तरफ से तो कोई आ नहीं सकता, केवल सामने से कोई आ सकता है, तो वो देख लेगा। तो वहीं एकदम कोने में ऐसी चीजों को आप क्या करें, स्टोर करें, तो उनके नॉकड ओवर होने की या उनके ठोकर लगकर गिरने से या उनके फैलने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। हम यहाँ पे इसी की बात कर रहे हैं कि कैसे इन चीजों को हम कम करेंगे। तो छोटी बात है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जो हैंडलिंग है केमिकल्स की, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। जो केमिकल फॉर्मूला है, जो उसका नाम है, जो लेबलिंग है केमिकल बोतल्स पे, वो बड़ी ही अच्छे तरीके से वहां पर दिखनी चाहिए। सौरभ सर का बहुत ही अच्छा एक लेक्चर होता है फार्मेसी प्रैक्टिस पे, वो करते हैं, वहां पे वो यही एग्जांपल लेते हैं और मेडिसिन के साथ लेते हैं। मैंने देखा है वो लेक्चर उनका काफी अच्छा। उसमें वो बताते हैं कि ब्रांड नेम्स कई बार सेम होते हैं तो मिसऐप हो जाता है। उसी तरीके से केमिकल्स के साथ हो सकता है। मेथेनॉल यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, मेंथॉल और मेथेनॉल अलग अलग हो गया, दो अलग अलग चीजें आप एक साथ हो सकता है पढ़ने में गलती कर दिया आपने और उसको आपने गलत तरीके से ले लिया जहां उसको नहीं लेना चाहिए था। तो जो फुल नेम है, जो हजार्ड्स के जो पिक्चोग्राम है आप देख रहे हैं पिक्चर्स पे, ये दो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में फ्लेमेबल और जो टॉक्सिक मटेरियल का वो दिखाया था, वो आपको इस बॉटल्स पे क्लियरली दिख रहा है। बाई चांस कभी ऐसा हो सकता है कि लेबल पुरानी बॉटल हो गई, खराब हो गया, तो यू कैन डिजाइन द लेबल जस्ट लाइक दिस एंड पेस्ट ओवर द बॉटल। आप उसको खुद से बना करके चिपका सकते हैं। और ये चीजें जो है वो बच्चों से बिल्कुल उनको अवेयर करके रखना चाहिए। हमारे टीचर्स को अवेयर होना चाहिए, हमारे लैब टेक्नीशियंस को अवेयर होना चाहिए कि इस तरीके का चीज जो है वो लगातार उसको मेंटेन करके रखें कि लेबलिंग इत्यादि जो है वो बॉटल्स की खराब ना हो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस की। तो क्या क्या हम कर सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जो भी हजार्डस पोजीशंस प्रोसीजर्स हैं, कोई ऐसा काम है जिसमें हमें मालूम है कि हम ऐसे केमिकल्स यूज करने जा रहे हैं, ऐसा प्रोसीजर हम करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी, कुछ फ्यूम्स निकलेंगी, तो ऐसा कोई भी काम आप अकेले ना करें। पहली चीज, क्यों? क्योंकि अगर आप अकेले कर रहे हैं, बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो गया, अब रात में कुछ लोग को लगता है कि हम सारा काम आज ही खत्म कर लें, तो रात में वो लैब में हैं और अकेले काम कर रहे हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो आसपास कोई व्यक्ति है नहीं कि जो उसको रोक सके या उनको मदद पहुंचा सके। तो इसीलिए कभी भी जो लैब में काम करिए, सबसे बेसिक चीज है, इसको कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए। एक यहाँ पे बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, जो कि एक केस हुआ था 2008 में, दिसंबर 29 में। शेरी सैजिन नाम की एक बालिका थी, करीब 23 ईयर्स की, और काफी एक क्या नाम है, रिसर्च स्कॉलर थी, अच्छा काम करती थी। और वो अपने एक्सपेरिमेंट से वो कर रही थी, तो लेबोरेटरी में वो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस की हम बात करते हैं उसको उसने इग्नोर किया। दूसरी चीज जो है, वो अकेले वर्क कर रही थी, रात के समय पे काम कर रही थी। और जब ये उनकी पिक्चर है और उन लेडी की, आप कभी भी गूगल कर सकते हैं, इनका देख सकते हैं। इन्हीं के बाद जो है ये सेफ्टी प्रिकॉशन के ऊपर एसीएस ने खर्चा करना शुरू किया था। और इनके साथ जब ये कांड हुआ, ये पूरा चीज हुआ और कोई नहीं था आसपास, वो काफी ज्यादा तरीके से जल गए थे। और जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, वहां पे जो केमिकल्स थे, आप देख रहे हैं लैब का क्या हाल हुआ था। और इसके बाद जो है, काफी देर बाद लोगों को पता चला और हॉस्पिटलाइज किया गया, और करीब 18 दिन तक वो लड़ते रहे। और ये काफी एक क्या नाम आप कहते हैं, डिसग्रेसफुल इवेंट है। एक एकेडमिक लैब के अंदर ये हो रहा है, कोई रिसर्च लैब के अंदर भी नहीं है, ये एकेडमिक लैब के अंदर ये सब कुछ हुआ। और इतना कुछ होने के बाद आप समझ सकते हैं कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कितना सारा जो है प्रेशर पड़ा होगा। कोई भी अपने बच्चों को भेजता है हमारे साथ काम करने के लिए, या हम उसे कुछ लैबोरेटरी प्रोसीजर सिखा रहे हैं, और इस तरीके का कोई अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उनका भरोसा ही कॉलेजेस के ऊपर से उठ सकता है। तो इसीलिए अनऑथराइज्ड एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। कोई भी इस तरीके का कार्यक्रम जो है वो हम ना प्लान करें जो कि एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स के साथ ना चल रहा हो। एक्सपेरिमेंट जो भी आपको करनी है उसको सोच समझ करके ही प्लान करें। कुछ भी केमिकल्स किसी के साथ मिलाने की कोशिश ना करें। और जो सबसे जरूरी बात है, अकेले काम जो है वो नहीं करना है, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो कोई व्यक्ति हो जो आपकी मदद वहां पे कर सके। तो ये एक काफी ये एग्जाम्पल हम लोग को लेना पड़ता है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता ये एग्जाम्पल बताते वक्त। इस तरीके के काफी सारे इंसिडेंट्स आपके आसपास हमेशा होते रहते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में जो है, हम लोग ग्रुप डिटेक्शन करवाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वहां पर हम लोग को सोडियम का प्रयोग करना पड़ता है। अब सोडियम मेटल हम सभी को मालूम है कि वाटर के कंटेंट में आने पर वो बर्न करता है, कई बार वो छिटकता भी इधर उधर, किसी को लग जाता है। और बच्चे क्या करते हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो शैतानी करना शुरू करते हैं। वो सिंक में वाटर है और उनके आस ही पास वाटर है, वो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के उसमें फेंकना शुरू करते हैं। एंड वो कई बार ब्रेक डाउन होता है। और कई बार देखा जाता है कि ऐसी चीजें जब भी होती हैं तो वो आपके ऐसे एरिया को हिट करेंगे, आपकी नोज को हिट करेंगे, आईज को हिट करेंगे, और वो नुकसान जो है वो काफी ज्यादा पहुंचा देते हैं। तो ये केसेस लगातार जो है वो होते रहते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। एक लैब में हम लोग के टाइम पे, हम लोग जब बी फॉर्म कर रहे थे, माइक्रोबायोलॉजी लैब में काम करते वक्त
ध्यान नहीं दिया एक बच्चे ने, हम लोगों को टीचर ने कहा कि आप लोग वर्क करने के बाद अच्छे से सोप से हाथ साफ करेंगे, जो कोविड में हम सभी ने किया। उस समय इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे। फंगस के ऊपर कोई काम हम लोग कर रहे थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे, फंगस को ग्रो इत्यादि करा रहे थे, एंड 2 से 3 दिन बाद उसके हैंड्स पर, उसके पूरे फेस पे ढेर सारी मात्रा में फंगस जो है वो ग्रो कर गया और करीब 10-15 दिन हॉस्पिटलाइज देना पड़ा, दवाएं खानी पड़ी, मेडिकेशंस लेनी पड़े, एंटी फंगल ड्रग्स ढेर सारी मात्रा में लिए, इंजेक्शंस लिए, तब जाकर के वो चीजें जो है वो सॉल्व हुई। तो ये एक्सीडेंट्स हो सकते हैं अगर आप जो है एप्रोप्रिएट तरीके से काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उन पे हम लोग को बहुत सारा ध्यान देना चाहिए। लेबोरेटरी जो एप्रेन, अब इस फोटो में आप ध्यान से देखिएगा, ये एक छोटी सी बात है। इस व्यक्ति ने जो भी कुछ पहना हुआ है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसने लैब कोट पहना हुआ, उसकी लंबाई आप ध्यान से देखें, काफी ज्यादा लंबी है। उसके आप हैंड पे जो उसका जो आर्म है वो देखिए कितना लंबा चौड़ा है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, वो मूवीज में देख करके आते हैं कि लैब कोट एप्रेन जो है वो एक ऐसी चीज है कि वो फैशन की चीज है, वो हाफ वाला लैब कोट एकदम बॉडी से सटा हुआ रहता है, ढीला नहीं रहता, और उसकी साइज जो है वो छोटी रहती है। लंबा कह दो तो कहेंगे सर लंबा क्यों पहनेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जो ये आप ढीला थोड़ा सा पहनते हैं, अगर कोई चीज गिरी तो वो आपके सीधे बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आएगी। प्लस ये जो लंबा होता है, कई बार ये आपके हाथ को इतना ढक के रखता है, कोई चीज गिरी तो आप उससे बच जाते हो। प्लस इसमें आपके जो महंगे कपड़े इत्यादि हैं वो भी खराब होने से बचे, हम लोग तो ये भी कह सकते हैं। तो जो सेफ्टी ग्लासेस हैं, जो आपका अगर कोई ऐसी प्रोसीजर कर रहे हो जिसमें धुआं इत्यादि निकल रहा है, हीट है, तो आप अपनी आंखों को भी बचाने की कोशिश करेंगे। हैंड में आप ग्लव्स पहनते हैं, ग्लव्स इत्यादि जो है वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, वो बहुत ही सस्ती क्वालिटी के नहीं होने चाहिए। और जो ग्लव्स हैं या जो भी कुछ आप सेफ्टी गियर आप पहन रहे हैं लैब के अंदर, खास करके एकेडमिक लैब के अंदर, उनको चेक कर लेना चाहिए यूज करने से पहले कि किसी तरीके का कोई डिफेक्ट इत्यादि तो उसमें नहीं है। पता चला हमने पहना तो है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग बच्चों को पहली क्लास में हमने बोला कि ये लेक्चर हमने दे दिया या ऐसे बता दिया कि भैया बहुत दिक्कत होती है लैब में, आप एक्सीडेंट्स कर सकते हैं। पहले स्कूलों में अच्छी तरीके से लैब वगैरह के कुछ प्रोफेसर होते थे, आजकल वो थोड़ा कम होता है। तो कॉलेजेस में आते ही बच्चे को बताया जाता है आपको लैब में जाना है, जरूरी है, लैब करनी है। तो क्या होता है कि वो कई बार डर जाता है। तो बहुत ज्यादा भी ऐसा प्रोटेक्टिव गियर का मतलब ये नहीं है कि एकदम आप इतना पहन लीजिए कि आप काम ही ना कर पाए, आपसे पेन भी ना उठे। हाँ, आपका जो भी गियर होना चाहिए वो एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए। आप ग्लव्स पहनिए, आप आई गॉगल्स लगाइए, जो है आई कोट, आप लैब कोट पहनिए, शूज पहन के रखिए। कई बार लोग हवाई चप्पल पहन के लैब में चले जाते हैं और वहां पर अगर केमिकल्स गिरा तो सीधा पैर आपका खराब करेगा। तो शूज भी चाहिए प्रोटेक्टिव गियर के रूप में, शूज भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। और आपकी स्किन जो है वो एरिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा कवर्ड होना चाहिए कि कोई केमिकल्स से मिसअप अगर हो भी रहा है तो आप जो है वहां पर बच जाए। नेक्स्ट, यहाँ पर एक और खास बात है, कुछ प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें तो जब हम लोग टेस्ट ट्यूब लेते हैं और हीटिंग की बात कर रहे होते हैं, कोई भी ऑपरेटर्स की हीटिंग की बात कर रहे हैं, तो कभी भी हम, क्योंकि हमने कहा ओवर कोडिंग हो जाती है लैब में, अब भाई 5-4 लोगों का ग्रुप है वो एक साथ लैब में काम कर रहा है, तो जो आप जैसे यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं एक पिक्चर में कि जो टेस्ट ट्यूब है उसको होल्डर से पकड़ा गया है, तो पहले तो हाथ से मत पकड़िए टेस्ट ट्यूब। कई लोग हाथ से टेस्ट ट्यूब पकड़ते हैं और उसको अपना देख रहे होते हैं। हाथ से नहीं पकड़ना है, हाथ से छूट भी सकती है और प्लस उसमें कोई केमिकल हो सकता है, आपके ऊपर छलक सकता है, गर्म करने जाएंगे आपका हाथ जल सकता है। तो हमको क्या करना है, पहले तो होल्डर पकड़ना है। होल्डर से पकड़ने के बाद वो हमारा हाथ जितना दूर हो सकता है, मतलब जितना हम स्ट्रेच कर सकते हैं अपने हैंड को उतना स्ट्रेच करेंगे और पीछे हो जाएंगे जब आपको उसको हीट अप करना है। मान लीजिए कि हमको बर्नर के ऊपर उसको रखना है। अब बर्नर के ऊपर आप रखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि वो फ्लड आउट बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। अब अगर वो बाहर निकल रहा है तो हम क्या करते हैं, हम भैया वो ग्लास वेयर है, वो आपको बाहर से दिख रहा है कि गर्म हो रहा है, कि कलर चेंज हो रहा है, कि जो हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, ऊपर से देखने की जरूरत नहीं है कि आप उसको ऊपर से देखेंगे तभी आपको कलर चेंज दिखेगा। तो आप उसको पहले दूर रखेंगे और नजर आपकी ऐसे होगी, प्लस उसका जो माउथ होगा ना वो आपकी तरफ हो, ना आपके सराउंडिंग में कोई और व्यक्ति हो उसकी तरफ हो। तो जब हम लोग लैब में काम करा रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, खास करके टीचर्स को, लैब टेक्नीशियंस इत्यादि को, या जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको, कि जो हमारा लैब का जो स्लैब है उसमें इस तरफ अगर कोई ग्रुप काम कर रहा है इस तरीके का, तो उस तरफ कोई ग्रुप ना खड़ा हो, वो बगल में खड़ा हो। पहली चीज तो ये कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। और बच्चों को जरूर बताया जाए कि जो ओपन है, ओपन जो माउथ है टेस्ट ट्यूब की, वो किसी की तरफ ना हो या दूसरे बच्चे की तरफ ना हो, वो उस तरफ हो जिस तरफ कोई ना हो। अगर कोई चीज निकलती भी बाहर तो किसी को नुकसान नहीं करेगी। नेक्स्ट, जब भी गर्म करें किसी भी ग्लास वेयर के अंदर किसी भी प्रोसीजर में, तो उसको तुरंत टच ना करें हाथ से, क्योंकि वो गर्म होगा तो आप जानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में आप हाथ छोड़ सकते हैं या आप जल भी सकते हैं, प्लस वो पूरा केमिकल नीचे गिर सकता है। इससे बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। अचानक से आपको लगा कि गर्म था, हाथ से छूटा और वो पूरा गिरा, आपके कपड़ों पे गिरा, आपके ऊपर गिर गया
और नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पहुंचा सकता है। जो कंसंट्रेटेड एसिड्स हैं उनको डाइल्यूट करना है। बेसिस को जब भी आप कंसंट्रेटेड जो डाइल्यूट करना है तो बहुत ही स्लोली डाइल्यूट क्या नाम है उसको डाइल्यूट करना चाहिए, और एक से दूसरे में यानी मिक्सिंग करनी है, एसिड को बेस में मिलाना है या उसको डाइल्यूट करना है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा पोर्शन में पार्ट बाय पार्ट आप उसको और स्टीयर करते हुए करें। अब एक यहाँ पे एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। एक हमारे यहाँ काफी साल पहले की बात है, एक लैब टेक्नीशियंस आए और नए आए, मतलब 2-3 साल का एक्सपीरियंस था उनको किसी कॉलेज का। मैंने उनसे बोला कि आपको डाइल्यूट करना है, थोड़ी ज्यादा मात्रा में एसिड चाहिए था, उस दिन प्रोसीजर लंबा था। तो हमने कहा, और बाद में पता चला, जब लैब में मैं पहुंचा तो पता चला कि वो है ही नहीं। मैं पूछा कि भैया लैब टेक्नीशियन साहब कहाँ गए, पता चला वो हॉस्पिटल गए हुए हैं, हाथ वाथ जला लिया उन्होंने। भैया आए, मैंने पूछा कैसे, तो कह रहे सर आप ही की वजह से तो हुआ है। अब मैं कहा मैंने क्या किया, तो बोले कि आपने कहा था कि 50 ml जो है ये बना के ले आइए। अब मैं 50 ml वाटर में इसको ऐड कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, और मैं जल गया। हमने कहा भैया मुझे लगा आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, इसको पार्ट बाय पार्ट जो है आपको डाइल्यूट करना था। एक साथ आप डालोगे विगरस रिएक्शन होगी, आप डर जाएंगे, आपको रिफ्लेक्स एक्शन में आपसे चीजें छूटेगी, आपके ऊपर जो है वो नुकसान जो है वो पहुंचा सकती है। नेक्स्ट, जो वर्क एरिया आपका वो क्लीन होना चाहिए, उसमें किसी तरीके का मिसाप वहां पे नहीं होना चाहिए, आसपास साफ सफाई रखिए। सभी बच्चों को ये कहा जाता है कि 10-20 रुपीज का डस्टिंग क्लॉथ आता है, वो अपने साथ रखें, साफ करें, और जब वो बेकार हो जाए तो उसको डिस्कार्ड करके दूसरा रखें। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले और करने के बाद वर्क स्टेशन को अच्छी तरीके से साफ करें। क्यों? क्योंकि जो अगला बैच आने वाला है वहां पे काम करने के लिए, अगर कोई केमिकल वहां पे गिरा हुआ है, कोई एसिड वहां गिरा हुआ है, तो बच्चों की आदत होती है वो सटके खड़े होते हैं आपके स्लैब से, उनका लैब कोट जल जाएगा और वो जल जाएंगे, या कोई वो दूसरा प्रोसीजर कर रहे हैं वहां पे आग इत्यादि लग सकती है। तो इस एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए हाउसकीपिंग की जो प्रॉपर्टीज है वो ठीक करनी चाहिए। हमारे कंट्री में एक प्रॉब्लम है, हमें लगता है कि ये काम हमारा नहीं है, दूसरे का काम है। मे बी जो हमारे 4th ग्रेड के स्टाफ है उसका काम है कि वो साफ सफाई ध्यान दे। बट जब हम वर्क कर रहे हैं तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बॉटल हमने जहां से ली वो वहां रख दें, जो हम जो वर्क स्टेशन है उसकी साफ करके काम करें, काम करने के बाद उसकी सफाई करें, जो ग्लासवेयर है उसको अच्छी तरीके से साफ करके रख दे, ताकि उसमें किसी तरीके का कोई जो पोर्शन है वो रह ना जाए और आगे चल करके वो एक्सीडेंट कॉज ना करे। नेक्स्ट, अब बात करता हूं डिस्पोजल पे, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट की बात भी हम लोग कर रहे थे। तो लास्ट टॉपिक है, मैंने काफी सारी स्लाइड इसमें कम की हुई हैं ताकि जो मेन बात है हम उस पर बात कर सकें। तो कई बार जो है देखा जाता है कि जब हम प्रोसीजर कर लेते हैं तो जो हमारा बचा हुआ केमिकल है वो हम उठा करके सीधे सिंक में डाल देते हैं। बच्चे ऐसा बहुत कुछ करते हैं, या जो भी कुछ टूट फूट हुई उसको उठाया सीधे आपने डस्टबिन में डाल दिया, जो क्लास के लैब के अंदर जो डस्टबिन रखी है उसको। इन सभी को अच्छी तरीके से हमें पहले तो लेबल्ड करना चाहिए, लेबोरेटरीज में सब कुछ रहना चाहिए लेबल्ड। इसके बाद किसी भी तरीके के इनकम्पैटिबल केमिकल को जब भी एक दूसरे के साथ स्पेंट केमिकल में आप डाल रहे हैं, एक बहुत ही खतरनाक तरीके से देखा जाता है कि एक प्रोसीजर में 3-4 केमिकल हमको यूज करने हैं। हमने कहा 2-2 ml सबको ले लेना है। आप गए और आपने पीपेट आउट किया, उसी पीपेट से आपने एक केमिकल अमोनिया लिया, उसी अमोनिया वाली पीपेट को आपने एसिड में डाल दिया। अब आप तो सब जानते हैं कि अमोनिया एसिड में जाएगा, वहां न्यूट्रलाइजेशन होगा, वो बोतल खराब हो रही है, उसके अंदर का केमिकल भी खराब हो रहा है, आगे चलकर आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। और ये जो आप कर रहे हो, मिक्सिंग कर रहे हो, इससे वो नुकसान भी पहुंचा रहा है। प्लस जो बचा हुआ है या जो अब डिस्कार्ड करने वाला केमिकल है उसको भी ट्रांसफर करते वक्त या उसको डिस्कार्ड करते वक्त इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो इनकम्पैटिबिलिटी का जो चार्ट बनाया था, जो कंपैटिबिलिटी का चार्ट बनाया था, वो इनकम्पैटिबल केमिकल्स को एक साथ आप मत डालिए। कई बार सिंक में डालते ही वहां धुआं निकलता है और आंखों में इरिटेशन होने लगती है और कई सारी प्रॉब्लम्स जो है वहां पर होती हैं। तो कुछ इस तरीके से आप डिस्कार्ड केमिकल्स को रख सकते हैं। वाटर डाल दिया नीचे थोड़ा सा एक ट्रे के अंदर, उसके अंदर रखा है, बाद में आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, हैंडलिंग की अगर बात करें वेस्ट मटेरियल्स की, तो किसको क्या करना चाहिए। जैसे ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं, आपका मिथाइलिन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन है, उसको, एसीटोन को, लिक्विड रिएजेंट्स को किसी ऑर्गेनिक हेलोजिनेटेड लिक्विड वेस्ट कंटेनर के अंदर आपको रखना चाहिए जिसपे वेस्ट फूड लगा हो। नेक्स्ट, जो एक्वस हैं, जो न्यूट्रल चीजें हैं, जो बेसिक या एसिडिक नहीं है, उनको आप ट्रेस इम्प्यूरिटीज के साथ, या जिसमें ट्रेस इम्प्यूरिटीज या ट्रेस ऑर्गेनिक चीजें हैं, उनको आप एक्वस वेस्ट कंटेनर के अंदर डाल सकते हैं। तो ये कंटेनर्स आपको वहां पे बनाने पड़ेंगे। जो एक्वस न्यूट्रल है, जो कि बेसिक या एसिडिक नहीं है, जो नॉन टॉक्सिक सॉल्ट्स इत्यादि के साथ हैं, उनको अगर आप लेते हैं जहां पे कोई ऑर्गेनिक चीजें नहीं है, उनको आप पब्लिक सीवर में डाल सकते हैं। अब क्या होता है कि ज्यादातर कॉलेजेस जो शहर में है, उससे जो आपका वेस्ट हुड है, जो आपका सिंक है, उससे पाइप है और वो पाइप लेकर जा रही है सीवर में डाल रही है। वही सीवर से पानी जा रहा है, नदियों तक पहुंच रहा है, आपके तालाब तक पहुंच रहा है, आपके जमीन में पहुंच रहा है। वो केमिकल
जो है वो घूम फिर करके फिर वो खेतों में पहुंचेगा, पानी में पहुंचेगा, या कोई जानवर उसको खाएगा। जानवर को कई बार इंसान खाते हैं, वो बकरी खा लिया या हिरन ने ले लिया और आपने उसको खाया तो आपके अंदर चला गया। प्लांट में चला गया, वो प्लांट से आप ले रहे हो, आपके वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में वो जा रहा है, फिर आप उसको खा रहे हो। तो आपको कभी भी कोई भी केमिकल जो डिस्कार्ड आपको करना है, क्या आप उसको सिंक में भेजने से पहले, या ज्यादातर कॉलेजेस जो है वो विलेज एरिया में है, तो विलेज एरिया में है तो वो तो सीधे खेत में चला जाता है, वो जो उनका सिंक है वो पॉट बनाए रहते हैं, उसमें जाता है सीवेज में, और वहां से फिर वो एब्जॉर्ब हो जाता है आपके आसपास के जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज ड्रेन में या पब्लिक सीवर में जाने से पहले ये सोचिए कि एक बात अपने आप से पूछेगा, वुड आई वांट टू स्विम, एक रूल, यानी कि ये एक रूल है जो आप कह रहे हैं, क्या इस तरीके के वाटर में या इस तरीके की चीज के अंदर मैं स्विम कर सकता हूं या इसको ड्रिंक कर सकता हूं। अगर नहीं कर सकता तो इसे हमें ड्रेन के अंदर नहीं डालनी, और अगर कर सकता हूं, हाँ ये सेफ है, ये इसमें कोई ऑर्गेनिक चीज नहीं है, नॉन टॉक्सिक है, न्यूट्रल है, अब तो इसको आप लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचाता। जो सॉलिड केमिकल्स हैं, वुड प्रोडक्ट्स हैं, लेफ्ट ओवर स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं, उन सभी को या ऑर्गेनिक हो या नॉन नेचर के, उनको सॉलिड वेस्ट कंटेनर के अंदर डालते हैं, और ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई आ जा ना रहा हो, किसी एरिया में एक लंबा सा जो है बड़ा सा आप जो है पॉट मतलब मिट्टी में गड्ढा करके उसके अंदर उसको डाल सकते हैं, अलग अलग, वो भी कंपैटिबल, एक साथ नहीं, जो कंपैटिबल हो उनको ले सकते हैं, उनको डाल करके अलग अलग पैकेट्स में उसको, ताकि वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर उनका डिकम्पोजिशन इत्यादि हो जाए। सॉलिड जो नॉन टॉक्सिक वेस्ट हैं, जैसे पेपर टॉवल्स हैं, नोटबुक पेपर्स हैं, उनको हम लोग जो हमारे यहाँ ट्रैशेज हैं, उनको ट्रैश है उसमें डाल सकते हैं, जो डस्टबिन है उसके अंदर डाल सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों को आपको डस्टबिन के अंदर नहीं डालना है। तो हमेशा जो आपका ग्लासवेयर है टूट गया है, जो डिस्कार्ड यानी क्लिप्स हैं, ब्रेक्स हैं, जो ऑब्वियस फ्लॉस हैं, उन सभी चीज़ों को कहाँ पे आप डालते हैं, तो सीधे डस्टबिन में अगर आप डालोगे तो जो व्यक्ति डस्टबिन को साफ कर रहा है उसके हाथ में लग सकती है, या उस डस्टबिन को वो ले जा करके किसी पब्लिक सीवर के आसपास कहीं फेंक दे रहा है, तो वो किसी जानवर को नुकसान पहुंचा सकता है, आगे चल करके उसके जो केमिकल्स हैं वो एग्रीकल्चर लैंड को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वहां पर आपको उनको नहीं डालना है। तो जो ब्रोकन ग्लास वेयर्स हैं, जो स्पेशल ग्लास वेस्ट कंटेनर्स हैं, वो एक बना लीजिए। जो भी हम केमिकल खरीद के लाते हैं उनके साथ डिब्बे मिलते हैं, उन डिब्बों का प्रयोग आप इस काम के लिए कर सकते हैं, वहां पर उसको डालिए, पुट कीजिए, बाद में उसको आप जो रिसाइकलर्स हैं उनको दे सकते हैं, क्योंकि ये ग्लासेस हैं, ये रिसाइकेबल होती हैं, इनको कहीं पर जमीन में फेंकने सकता है कि रिसाइकिल हो जाए और फिर से किसी दूसरे प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो जाए। तो जो रिसाइकेबल चीजें हैं उनको आप इस तरीके से यूज वेस्ट डिस्पोजल में कर सकते हैं। जो भी आपका लैबोरेटरीज में वेस्ट जनरेट होता है उसको हमें सिंक के अंदर कभी नहीं डालना है, जब तक कि हमें मालूम ना हो कि ये सिंक में डालने के लिए सेफ है। आप अपने इंस्ट्रक्टर से, जो आपके टीचर्स हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, और जो एसिड या बेसेस हैं, ऑक्सीडाइजर्स हैं, फ्लेमेबल्स हैं, वाटर रिएक्टिव और एक्वस सॉल्यूशंस हैं, साइनाइड्स हैं, एसिड्स हैं, या इस तरीके की जो भी चीजें हैं, जो हजार्ड्स हैं, जिनका बारे में ऊपर हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, उनको अगर डिस्कार्ड करना है तो डिस्कार्ड करने से पहले आप अपने इंस्ट्रक्टर से जरूर पूछें, और सीधे सिंक में उसको न डालें। एसिड आप सिंक में डालते हैं, वो चोक भी कर सकता है, आपकी सिंक को भी खराब करता है, लेबोरेटरी भी खराब होती है इससे, तो कई तरीके से इसमें फाइनेंशियल लॉस भी जो है वो हो रहा होता है, खास करके जो केमिकल जो नेचर की चीजें हैं जो खराब कर रही हैं, एनवायरमेंट को खराब कर रही हैं, लोगों की हेल्थ को बर्बाद कर रही हैं, वो तो कर ही रही है। तो इसको हम क्या करते हैं, जो हमारे जो यूज्ड डिब्बे हैं केमिकल्स इत्यादि के, या जो और प्लास्टिक वेस्ट इत्यादि है, उसका प्रयोग आप कर सकते हो साफ करके, उसमें इन हजार्ड्स वेस्ट को डाल सकते हैं। और आगे जो वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनियां आजकल हर जगह पे हैं, हर जगह जो है कूड़ा उठाने वाले हैं, हर जगह जो अब इसके भी स्टार्टअप्स हैं, लगभग हर सिटीज में आपको मिल जाते हैं, उनको आप बता सकते हैं कि ये क्या है मटेरियल, बायो हजार्ड्स है, केमिकल हजार्ड्स है, इसको आप डिस्कार्ड कर दें, हमारे पास इसको डिस्कार्ड करने की कोई व्यवस्था नहीं है अगर तो। नेक्स्ट, अगर ड्रेन डिस्पोजल की बात करें तो हमेशा, जो मैंने पहले भी कहा, कि इसको आप लोग सिंक में डालने से पहले ध्यान रखें, कोई भी फ्लेमेबल लिक्विड है जिसका फ्लैश पॉइंट जो है 140 फ़ारेनहाइट से जो है वो कम है, जिसमें कुछ एग्जांपल्स सकते हैं, गैसोलीन है, केरोसिन है, नेफ्था, बेंजीन, टॉल्यूइन, जाइलिन, कोई भी फ्यूल ऑयल, ईथर, कीटोन्स, एल्डिहाइड, क्लोरेट्स, परक्लोरेट्स, ईटीसी, इनको एक्सप्लोजिव मटेरियल्स को, मरकरी के कंपाउंड्स को, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को, कोई भी फोटोग्राफिक यूज फिक्चर सोल्यूशंस जो हैं, या जो सिल्वर रिकवरी सिस्टम के थ्रू जो जा सकते हैं आपके शरीर के अंदर जो जा सकते हैं, या हजार्ड्स वेट्स हैं, इन सभी को ड्रेन डिस्पोजल के अंदर हमको नहीं डालना चाहिए, किसी भी कीमत पे आपको इनको सिंक में नहीं डालना है। जो एक्सेप्टेबल है ड्रेन डिस्पोजल के लिए, जैसे कोई पीएच सोल्यूशंस हैं, जो सॉल्ट्स हैं या बफर सोल्यूशंस हैं जिनका पीएच रेंज 5 से 12 के बीच में है, जो ऐसे लिक्विड्स या सोल्यूशन जिनका फ्लैश पॉइंट 140 से ऊपर है, 140 फ़ारेनहाइट से या 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, वो केमिकल्स जो वाटर सॉल्युबल हैं, नॉन हजार्डस हैं,
जो एसिड बेसेस हैं जो न्यूट्रलाइज, उनको एसिड और बेस को डिस्कार्ड करने से पहले उनको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज करके उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी उसको खत्म करके उसको यूज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल लिक्विड्स हैं जिनको ट्रीट किया जा चुका है डिसइंफेक्टेंट से, जैसे कि कोई आपने मीडिया वगैरह बनाया था उसको डिटर्जेंट से बढ़िया से अच्छा साफ सुफ कर दिया और अब वो उसमें किसी तरीके का बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर सकता, उसको आप फेंक सकते हैं। बफर सोल्यूशंस हैं जिनका जो कि कम मात्रा में है उनको आप ले सकते हैं, जिसमें सोडियम डाइब्रोमाइड जो है वो कम मात्रा में हो, लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर ml हो, उसको आप फेंक सकते हैं। एक्वस सोल्यूशन जिसमें अल्कोहल्स हैं जिनका कंसंट्रेशन 20% जो है वेट या बाई वेट या फिर उससे कम हो, उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। एक्वस सोल्यूशन जो फॉर्मलिन इत्यादि के हैं जिनका कंसंट्रेशन 10% से कम हो बाई वेट, उनको आप जो है डिस्कार्ड करते हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो उसको आपको डाइल्यूट करना है। और रीयूज के बारे में भी सोच सकते हैं, जैसे अल्कोहल है वाटर में मिल गया, आप किसी प्रोसीजर में गए, आप उसका डिस्टिलेशन वगैरह करके वापस से उसको यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे काम में यूज कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि सीधे प्रोसीजर में नहीं यूज कर सकते, बट वेस्ट जो है वो कम करने के बारे में बात जो है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट, ये अब चल रहे हैं हम लोग, लास्ट स्लाइड है कि सबसे पहले जब भी आप डिस्कार्ड करने के बारे में सोचें, डिस्पोज करने के बारे में सोचें, तो सोचें पहले और डिस्पोज बाद में करें। हम क्या करते हैं, सीधे अब प्रैक्टिकल खत्म हो गया, 3 घंटे 4 घंटे का प्रैक्टिकल था, लास्ट का टाइम है, अटेंडेंस हो गई, जो कुछ बचा है उठाओ और सब सिंक में डाल दो या डस्टबिन में फेंक दो। नहीं, ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि ये सबसे छोटी बात सुनने में लग सकती है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी मैंने एग्जाम्पल्स अभी आपके सामने रखे उसको देख करके, तो जो भी चीज है वो क्या है उसको ध्यान दीजिए और इन प्रोसीजर्स जो मैंने बताया उसको देखिए। अगर पेपर है, कोई केमिकल रेसिड्यू नहीं है, तो उसको आप डस्टबिन में डाल सकते हैं। ऐसी कोई चीज जो कि आपके डस्टबिन में जाने लायक है, जो किसी को हम नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वहां पे उसको डालिएगा। और डस्टबिन भी आजकल लिक्विड और सॉलिड्स के लिए अलग अलग आती है, तो अगर गीली चीजें हैं तो गीली वाले में डालिए, सूखा है तो सूखे वाले में डालिए, क्लीन ब्रोकन ग्रास है या केमिकल वेस्ट है तो वो यहाँ पर डस्टबिन में मत डालिए। जो पेपर या केमिकल्स रेसिड्यूज हैं और केमिकल वेस्ट हैं उनको आपको यहाँ नहीं डालना। एक बॉटल बनाइए जिसमें ब्रोकन ग्लासेस, टूटी फूटी जिसमें केमिकल रेसिड्यूज ना हो, उनको आप यहाँ डाल सकते हैं। जो केमिकल वेस्ट हैं उनको आप हजार्ड वेस्ट लिख करके लेबल लगा लीजिए और अलग से बॉटल्स या जो कंटेनर्स हैं वहाँ पे आप इनको डाल दीजिए, और इस तरीके से आप इसको डिस्कार्ड करेंगे तो ये आपका नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से केमिकल्स हैं, उनके क्या क्लासिफिकेशन है, सच में कि वो हमारे साथ क्या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, अपना सेफ्टी गियर आपको किस तरीके से लेना है और वेस्ट डिस्पोजल किस तरीके से करनी है। एक छोटा सा इस पे हम लोगों ने बात की, और इन सभी टॉपिक्स को आप वापस से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, थोड़ा इनलार्ज कर सकते हैं। और एक हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोग के टीचर्स ने हम लोग को ग्रीन केमिस्ट्री इत्यादि के बारे में बताया, और उन्होंने ये चीज़ कही कि ये कोई ब्रांच नहीं है केमिस्ट्री की, ये केवल है कि हम कोई भी काम जो कर रहे हैं उसको हमको दोबारा से थिंक करना है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, आसपास के लोगों के फ्रेंडली, इकोनॉमिकली इस पे काम करना है। तो जब भी कोई काम आप करने जा रहे हैं, एक तो सबसे पहला चीज़ ये सोचिएगा कि कोई भी बेमतलब के एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर मत परफॉर्म कीजिए, जिनकी कोई ज़रूरत है उनको नहीं है उसको मत कीजिए। कई बार जैसे हम लोग भी देखते हैं, एक लास्ट पॉइंट में इसमें जोड़ना चाहूँगा हमारे टीचर्स के लिए, कि अगर आप कोई लैब में, खास करके केमिस्ट्री की लैब में कोई सिंथेसिस इत्यादि कराने जा रहे हैं और आपने बुक में देखा प्रोसीजर लिखा हुआ है जिसमें 10 ग्राम ए को लेकर के 10 ग्राम बी के साथ रिएक्ट कराएंगे और 20 ग्राम प्रोडक्ट बनेगा, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में केवल आप सिंथेसिस के प्रोसीजर्स को सिखाने के लिए अगर इस लैब को कर रहे हैं, तो 20 ग्राम जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो या 10 ग्राम जो आपने रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट आपने ले रखा है, वो आप पूरी तरीके से वेस्ट होने वाला है, क्योंकि एक बार उस प्रोसीजर के होने के बाद उसका कोई यूज नहीं है। लड़के को आपको सिखाने के लिए आपने उस प्रोसीजर को परफॉर्म किया था, तो हम क्या करें, उसकी मात्रा कम कर सकते हैं। अगर हम सेम को मॉलिक्यूलर बेसिस पे उसको कम कर दें, 10 ग्राम की जगह हम उसको 1 ग्राम पे लेकर के आए, आप 1 मोल ले रहे थे, आप 0.1 मोल ले लीजिए, तो भी रिएक्शंस होंगी। मानता हूं प्रोडक्ट कम बनेगा, यील्ड कम आएगी क्योंकि आपने कम लिया है, लेकिन प्रोसीजर तो सेम रहेगा, बच्चे को सीखने में आसानी, जहां ये पॉसिबिलिटी है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, जहां ये पॉसिबिलिटी है वहां आप वो केमिकल्स कम कर सकते हैं। हजार्डस जो केमिकल्स हैं उनसे रिलेटेड जो आपके प्रोसीजर्स हैं, कोशिश कीजिए कि उनको कम किया जाए। जैसे एस्प्रिन की सिंथेसिस करने के लिए अगर जो है आपके पास एस्टाइल क्लोराइड से भी वो हो सकती है, आजकल तो लैब में उसी से करते हैं, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है। तो एस्टाइल क्लोराइड का प्रयोग कर रहे हैं एनहाइड्राइड्स की जगह पे, तो अब इस तरीके का प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कम से कम यूज हो, ऐसे प्रोसीजर्स कराइए जहां वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज हो। तो आप केवल वही लैब्स मत कराइए जो बुक्स में लिखी हुई हैं, थोड़ा समय आपको लगेगा,
आपको खोज करनी पड़ेगी, नेट पे जाना पड़ेगा, बुक्स पलटनी पड़ेगी और आपको अल्टरनेट कोई दूसरा प्रोसीजर, कोई दूसरा अच्छा एक्सपेरिमेंट मिल सकता है जहाँ हजार्डस केमिकल या महंगे केमिकल्स का यूज़ कम हो, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप सिखा पाएँ और ये एक अच्छी चीज़ आप उनको सिखा पाएँ जो हमारे घरों से निकल कर के आती है। किसी भी केमिकल, किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है और अगर वेस्ट हो रही है तो उसको कम से कम मिनिमाइज़ जो है वो हमको करना है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसमें काफ़ी कुछ काम का मिला होगा और अगर कोई चीज़ें रह जाती हैं, कोई और प्रश्न है तो आप बाद में कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये शायद यूट्यूब पे जाएगा तो वहाँ पे मैं देखता रहूँगा और अगर आंसर करना होगा तो मैं ज़रूर करूँगा, या इस पे फिर आगे हम लोग कभी और फिर बात करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू आईएसएफ एंड आईक्यूएसी जो डिपार्टमेंट है, और हमारे प्रोफेसर जीडी गुप्ता सर जो डायरेक्टर हैं आईएसएफ के, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो इस तरीके के चीज़ें जो है लगातार करते रहते हैं, हम लोग को काफ़ी कुछ उससे सीखने को मिलता है। हमारे प्रोफेसर सौरभ कुसे सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। शुक्ला सर, आपने केमिस्ट्री के जिन तथ्यों को प्रयोगशाला के अंदर प्रयोग होने वाले तमाम उपकरणों के प्रयोग से पूर्व, रसायनों के प्रयोग करने से पूर्व जितनी भी तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए उसके ऊपर इतना प्रकाश डाला। यू हैव रियली इनलाइटन द वेरियस एस्पेक्ट्स। थैंक यू। It is personal and professional both learning. Hopes our audience have learnt a lot. And definitely when the comments section में यदि कोई query or any if any curiosity do comes in the research scholars mind, so they will write, and definitely sir. And once again sir, thank you on behalf of ISF College of Pharmacy, IQAC, ISF CP, and in future also sir, we would like to take your professional Sure, sir. expertise and services for series and opportunities. Once again, thank you sir Thank you, sir. for joining Thank with you. this ISF CP dialogue series. Thank you sir.